رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا۔ تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔
घुटनों तक अंदर चला गया। अब उसके बाद उसने पुकार करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पूरी जिंदगी देखा, आप शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं, आपके बाप आपके दादा सब जूदो सखा और करम वाले लोग हैं, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धसाए नहीं, जमीन से कहा, है जमीन सुराका को छोड़ दे। जो जान लेने आया, हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका को छोड़ दे। जमीन हट गई और सुराका के पैर निकल आए। वो जब निकल आए, बाहर चलने लगा, मेरे आका अपना सफर तय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुराका की नीयत फिर खराब हुई, दोबारा फिर हुजूर का पीछा किया। हुजूर का पीछा करते हुए करीब आया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फिर आ गया। मेरे आका ने पीछे देखा और फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। दोबारा जमीन फट गई, अब कमर तक धंस गया, कमर तक धंस गया। और उसके बाद फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा, ऐ मोहम्मद, आप करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, आप शरीफ नफ्स हैं, आपसे कभी किसी ने बुराई नहीं देखी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे आका ने पलट करके देखा और कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे, जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन फिर फैल गई और सुराका के कदम वहां से निकल गए। एक तरफ अता ही अता है, ये है शान मुस्तफा। मेरे अजीजों, सुराका को तो अब जाना था, चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरी बार फिर नीयत खराब हुई। एक है मेरे मुस्तफा, आजादी पे आजादी देते हैं और दुश्मन फिर हमला पे हमला करना चाहता है। तीसरी मर्तबा आ गया कि आप किसी और रास्ते से आकर पकड़ लूं, 100 ऊंट कहां छोड़ूं। लालच। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा देखा, फिर फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, अब गर्दन तक चला गया। अब तीर और तरकश तोड़ दिया और कहा, अब सच्ची तौबा करता हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने अब क्या किया, अब क्या किया, आप सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि देखा और कहा, सुराका तो पीछे से पीछे लगा हुआ है सिर्फ 100 ऊंट के लिए, 100 ऊंटों के इनाम के चक्कर में तू मुझे गिरफ्तार करने आया। लेकिन मैं तो देख रहा हूं तेरे हाथ में कैसर और किसरा बादशाह के कंगन आने वाले हैं। कैसर और किसरा बादशाह उस जमाने के सुपर पावर ताकतों का नाम था। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया को कहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ईरान और रोम को सुपर पावर कैसर और किसरा कहा जाता था। और उन बादशाहों के यहां सोने के कंगन पहने जाते जो दुनिया के सबसे महंगे। और वो सुराका को मेरे आका फरमा रहे, मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। इतना सुनना था, उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओ कलमा तैयबा पढ़ा। अब वो जो गिरफ्तार करने आया था दामन इस्लाम में आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान निछावर करने को तैयार। अब वो सहाबी रसूल हैं, उनकी बारगाह में हम एक जुमला भी नहीं कह सकते। अजीजा ने गिरामी, यही शान मुस्तफा मुझे अर्ज करनी है। कहीं लोग मारे जाते हैं या अगर किसी नबी को जलाल आया तो हिलाक कर दिए जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का जूदो सखा ऐसा है कि लोग अगर जान भी लेने आए, मेरे मुस्तफा उन्हें माफ करके हमेशा अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं। एक दो नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब जो तलवार लेकर मेरे आका की गर्दन मारने जा रहे थे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलवार रखी और अपनी गर्दन भी रख दी और हमेशा के लिए मेरे आका के होकर रह गए। एक दो नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद जो हुजूर के मुकाबले में जंगे उहद लड़े और वहां पर मुकाबला किया। अबू सुफियान कितनी जंगे लड़े, लेकिन आखिर में मेरे आका की गुलामी में आ ही गए, इसलिए कि चेहरा ही कुछ ऐसा था मेरे आका का। दुश्मन भी देखता तो कहता ये झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जो बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे आका ने फरमाई नहीं दिया कैसर और किसरा के कंगन। हुजूर की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक की भी वफात हो गई, खिलाफत फारूकी आई, हजरत उमर का जमाना था। उस जमाने में इस्लामी फौजें ईरान पर चढ़ाई की और रोम पर भी हमला किया। कैसर और किसरा दोनों की हुकूमतें खत्म हुई और वहां से
जो माले गनीमत था वो मदीना लाया गया, कैसर और किसरा के वो कंगन भी लाए गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में बहुत शदीद बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि लोग आखिरी बार उनको देखने के लिए आने लगे कि अब इनकी वफात करीब है। जब लोग जमा हुए घर में, हजरत सुराका ने जलाल में कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग, सब वापस जाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम समझ रहे हो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा आपकी हालत बहुत नाजुक है, वफात करीब आ चुकी, आपकी ऐसा नज़ा का आलम लगता है। हजरत सुराका ने कहा खबरदार, मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने हाथ में कैसर और किसरा के कंगन ना देख लूं। इसलिए कि किसी और ने नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया। उनकी तबीयत सही भी हुई, सेहतयाब भी हुए, और हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा को फतह किया गया और वो कंगन लाए गए, हजरत उमर की बारगाह में पेश किए गए। हजरत उमर ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना था कि ये कंगन सुराका के हाथ में डाले जाएंगे, ये ले जाओ मुसलमानों, ये अमानत है। और ले जाकर के हजरत सुराका को पहनाया गया। मेरे मुस्तफा की जुबान से जो बात निकली वो हो कर रही, चाहे दिन बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता। हजरत सुराका को कंगन मिलने के बाद फिर उनकी वफात भी हुई। अजीजान गिरामी वकार, मैं गुफ्तगू तवील न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। शान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये है कि उनका खुदा खुद बयान करे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में शान ये थी, लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की। हातिम ताई के कई दरवाजे थे, जिस दरवाजे से आदमी जाता उसे हातिम ताई दे देता था, नवाजता था। लेकिन लोगों ने कहा रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने ये कहा इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता, अखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा मियां हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, बड़ी लगती हुई बात है, मिलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मिलाद में इस हिकायत को बयान करता हूं। सआदतुद्दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था, और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे ज़ुलजलाल ही लाता है। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात, बताया ऐसा ऐसा मामला, कर्ज में परेशान। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज इशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज इशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते, दर्द
इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पढ़ता रहा और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताब रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया, क्या तूने मुझे पुकारा। एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है, हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया, एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं। सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता, हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है। लेकिन उसके पास जाना तो ये कहना कि ऐ वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया और सो गया गफलत में, कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा। जाकर के इतनी बात कह के मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा। वजीर ने कहा कि मियां, आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है। उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा, हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है तो आज तो मैं कामयाब हो गया, आज तो मैं कामयाब हो गया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे। ऐ आने वाले, बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मेरी ये हाजत है। उस वजीर ने कहा, एक दो नहीं, मेरा पूरा खजाना तेरे लिए है। आज तूने जो बशारत लाई है, आज जो खुशखबरी लाई है, वो मेरी जिंदगी की मेराज है। जिस मुस्तफा के लिए मैं रात रात भर बैठ करके दुरूद पढ़ता था, एक गरीब ने मेरे मुस्तफा की बशारत मेरे घर तक लाई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो खुश होकर बहुत सारे माल से उसे नवाजा। सुनो, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल बात तो यहां शुरू होती है। अब वो लेकर के आया, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, काजी इस्लाम के पास आया और काजी साहब से कहा, उन कर्जदारों को बुलाओ जो मुझे बार बार कर्ज का तकाजा करते हैं, माल का तकाजा करते हैं। उन्हें बुलाया गया। काजी इस्लाम
अदालत की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद इस मुफलिस और गरीब ने कहा, आज जिसका जितना कर्ज है सब देने को तैयार, माल भी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सब दे दूंगा। काजी ने इसकी बात देखी और सुनी तो कहा, बैठ जा कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बिठाने के बाद अब काजी जो मुकदमे में शुरू में 3 दिन पहले जेल की धमकी दिया था, अब कहता है, ऐ मुफलिस गरीब आदमी, आज की अदालत में फैसला बदल गया है, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। वो खड़ा हो गया, पूछा, 3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो? यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं, दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया, ऐ काजी इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्ज अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब आप भी रहने दे, ये भी रहने दे, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजान गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो, या रसूल अल्लाह आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार है तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजान गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफा है। अजीजान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाजा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामने रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी खत्म नहीं होगी, बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़हे इसके सफ़हे सियाह हो गए, मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूं, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूं कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। आपसे ज्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं या रसूल अल्लाह। हकीकत तो ये है, आपसे ज्यादा खूबसूरत
किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे। और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है, इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में ऐसे मिलन, ये अमन व अमान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इतनी बात नहीं, शान मुस्तफा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भोंकते हैं भोंकने दो, मेरे मुस्तफा की शान न कभी कम हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफा की शान में भोंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद जमाना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہوگا، لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ گستاخوں کو چھوڑیں، وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں، ان قریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا، میں نے توبہ کیا اس مقدس اور پاکیزہ منبر پر اس خبیث مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے، کبھی نام نہ لیا جائے جس کی ماں نے حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو۔ منبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو منبر پر کیسے بیان کیا جائے؟ ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے، جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کمینوں اور بدبخت زمانہ کو آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جگہ جگہ منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے اس خبیث کو آج منہ چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ میرا مقام نہیں، بات صرف اتنی ہے جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا، مصطفیٰ کا نام لے گا، مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سنی مسلمانوں، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کہ محمد سے وفاتوں نے۔ تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے، اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ نے دیکھا ایک عطا رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا، عاشق رسول ہی تو تھا، عاشق رسول، عطا رسول، آل رسول آیا، کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا۔ 800 سال ہو گئے، کرسی ابھی بھی قائم ہے، آج بھی حکومت قائم ہے۔ یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا، بہت سخت بولتے ہو، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جیل میں بند کر دیے جائیں گے، سب کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہی جذبہ اللہ جوان رکھے۔ ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے۔ اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے؟ وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے،
किसी पाखंडी की एक गलीज जुबान से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर होता है, जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ ये नापने के लिए ही करते हैं। देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है, लेकिन तुम हकीकत ये समझना मत कि तुम्हारे ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला मैं अपनी मिसाल बता दूं। एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहिला किया था। वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं और कहा जाता है आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि सुन्नी मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, बात समझे। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ।